Our top focus at this point of time, unending trouble for Congress spokesperson Pawan Khera over his distasteful remark on Prime Minister Modi. After being deplaned from Indigo flight that was headed to Raipur, Pawan Khera has been arrested by the Assam police from Delhi airport. While other Congress leaders who were protesting in support of their colleague have been detained by the Delhi police. Now, meanwhile, Assam police has said they will seek Khera's remand from court and he will be produced before a judge soon. Congress has slammed the BJP over the action, saying that they are treating Khera like a criminal. अरेस्ट कर लिया गया ये कुछ शिकायत होगा इन्होंने जी क्या कारण है कि डॉक्यूमेंट्स दिए इन्होंने अभी देखते हैं। ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। चला रहे हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई है। इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी साझा कौन-कौन लोग थे करेंगे। अंदर, कौन-कौन थे कांग्रेस के? ऑर्डर दिया नहीं, मैं ही हूँ। इंडिगो की फ्लाइट से कांग्रेस महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं। यकायक उन्होंने हमारे साथी पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है। उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस उन्होंने हमारे जहाज को रोक रखा है जबरदस्ती। हमारे प्लेन को जाने नहीं दे रहे, हमें महाअधिवेशन में जाने नहीं दे रहे। ना वो प्रोडक्शन वारंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना गिरफ्तारी का ऑर्डर दे रहे हैं। इतना बड़ा कोई अपराधी नहीं पवन खेरा जी, वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं। तो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। All right, my colleague Samia is joining us on the broadcast to give us details on this. Samia, unending trouble for Pawan Khera here over his distasteful remark on Prime Minister Modi. He is now being arrested by the Assam cops and he will be also shortly produced before the court. Now, of course, Congress is on a full-blown offense. Well, there was high drama witnessed at the tarmac at the Delhi airport today when Pawan Khera was asked to deplane. And remember, all the top senior Congress leaders were on their way to Raipur, where the Congress party is scheduled to hold a plenary session tomorrow itself. Now, Pawan Khera wasn't really provided a clarification as to why was he being asked to deplane, and that's the reason why all the other leaders who were accompanying him, Randeep Singh Surjewala, K.C. Venugopal, Supriya Srinath, and several other parliamentarians also were present over there. All of them decided to stand in unison with Pawan Khera and hold a demonstration on the tarmac itself. They held a sit-in protest and they did not allow that particular Indigo flight to take off. They halted the flight operation over there and they were asking questions from the airport authorities and the staff over there as to on what grounds is Pawan Khera being asked to deplane. Soon later, after that, of course, CISF and the police had also approached Pawan Khera at that point in time. They all reached the tarmac and there was a lot of back and forth that happened where Randeep Singh Surjewala, who's also a qualified lawyer, went on to ask about the written details, the written summons to even take away Pawan Khera or ask him to deplane. Of course, there was no written documents over there to try and substantiate their claims, but all that they maintained was they were police from Assam and they were acting on a complaint that was registered against Pawan Khera over his defamatory remark against the Prime Minister. Remember, the crux of it all is, of course, the Gautam Adani enterprise and the financial irregularities where the Congress party has been demanding an investigation into. And, of course, Pawan Khera in a recent press conference had juxtaposed the names of Gautam Adani with the Prime Minister's name, and that led to a lot of
of furor and received a backlash from the BJP's end, but the Congress party seemed to have dug in their heels and they have decided to still demand an investigation as far as the Gautam Adani enterprise is concerned. Right. But in this entire episode, of course, whether Atal Pawan Khera is going to regret the statement, apologize, as of now, what we can tell you is that they are at the T1 airport, the police station, and are expected to be produced in the court soon, after which he's expected to be taken to Assam. Randeep Singh Surjewala is accompanying Pawan Khera through all this ordeal. All right, Samia, thank you for giving us those details. My colleague Ranjita is also with us to give us more perspective as to what exactly is happening. Ranjita, इस वक्त पवन खेड़ा हैं, उनको अरेस्ट किया गया है असम पुलिस द्वारा और कोर्ट पे भी उनको पेश किया जाएगा. आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त बहुत गुस्से में है. निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के जिस तरह के स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं, जब ये पूरा वाकया दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ, जब इंडिगो की फ्लाइट में पवन खेड़ा महाअधिवेशन के लिए जो रायपुर में होना था उसके लिए दिल्ली से रायपुर रवाना हो रहे थे, पुलिस ने उस दौरान रोका. उनके साथ कई और कांग्रेस के नेता थे, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, सुप्रिया श्रीनेट, केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, ये तमाम नेता भी पुलिस से सवाल करने लगे कि आखिर किस वजह से उन्हें रोका जा रहा है, क्या कोई कागजी कार्रवाई करके आई है दिल्ली पुलिस. लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर बवाल भी बढ़ता चला गया. नेता वहां प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करने लगे और ये कहने लगे कि ये कहीं न कहीं जो दिल्ली प्रशासन कार्रवाई कर रही है वो केंद्र सरकार के निशाने पर किया जा रहा है और ये बदले की राजनीति के तहत हो रहा है. अब जो खबरें निकल कर आई है वो ये कि दिल्ली पुलिस जो है, जो कागजी कार्रवाई करके लाई थी, उसमें असम पुलिस का भी हवाला दिया जा रहा है, असम पुलिस के एफआईआर का हवाला दिया जा रहा है और उसके बिना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि पहले उन्हें आईजीआई डोमेस्टिक थाने ले जाया जाएगा और अगर ये वाकया T1 जो टर्मिनल है वहां हुआ है तो पवन खेड़ा को द्वारका कोर्ट पेश किया जाएगा और अगर T3 पर यह हुआ है तो पटियाला हाउस कोर्ट जो है वहां ले जाया जाएगा. इस तरह की जानकारी सूत्रों के मुताबिक निकल कर आ रही है. सीधे तौर पर यह पूरा मामला प्रधानमंत्री के पिता पर दिए हुए उनके बयान, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में की थी, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बातें कही थी उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस पार्टी इसे दूसरी तरफ लेकर जा रही है. कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस का अधिवेशन है 3 दिनों का रायपुर में. पहले भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की गई केंद्र सरकार के द्वारा और अब अधिवेशन से उन्हें लग रहा है डर, इस वजह से ये पूरी कार्रवाई हो रही है. जयराम रमेश जो कम्युनिकेशन विभाग के हेड हैं वो यहाँ रायपुर में 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर और कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मुद्दे को कहीं न कहीं जाने नहीं देना चाहती. यही वजह है कि जब पुलिस पवन खेड़ा को लेकर जा रही थी तो उनके साथ राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी गए. कानूनी जानकार है क्योंकि वो खुद भी एक वकील है, तो ऐसे में कानूनी दावपेच क्या कुछ वहां धाराएं उन पर लगाई गई है. कुछ नेताओं का यह भी कहना है जो उनके साथ इस फ्लाइट में मौजूद थे, कहा जा रहा है कि फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है और असम पुलिस, जिस तरह से ये पूरे मामले में असम पुलिस की एंट्री हुई है, पवन खेड़ा को गुवाहाटी ले जाने की बात भी कही जा रही है. लेकिन अगर दिल्ली में कोर्ट में उनकी पेशी होती है उसके बाद क्या कुछ मामला निकल कर आता है और कांग्रेस इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस का ये कहना है कि ये पूरी तरह से जो है विपक्षी पार्टी जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या फिर दूसरे मुद्दे पर, उन्हीं मुद्दों को देखते हुए ये बदले में की हुई कार्रवाई है. रंजीता, कांग्रेस बहुत क्लियरली कह रही है कि ये तानाशाही हो रहा है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि पवन खेड़ा जो हैं वो क्रिमिनल नहीं है और उनके जो पुलिस है उनके पास कोई प्रूवन लेटर भी नहीं है कि वो उनको ले जाए इस तरीके से. तो इस पे आगे की क्या रणनीति होगी अगर बात की जाए कांग्रेस की इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए या फिर दूसरे कांग्रेस के नेताओं की,
सुप्रिया श्रीनेट उनके साथ वहां फ्लाइट में जाने के लिए वहां मौजूद थी। अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपना एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो सीधे तौर पर कह रही है कि ये तानाशाही की तरफ लेकर जा रही है सरकार, और खासकर विरोध झेलना सरकार को आना चाहिए। अगर विपक्षी पार्टी किसी मुद्दे पर, किसी बात पर अपनी राय रखना चाहती है तो संसद के अंदर भी नहीं बोलने दिया जाता है। जिस तरह से राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों को जिस तरह से रिकॉर्ड से हटाया गया, उसका वो हवाला दे रही है। उनका कहना है कि विपक्ष की आवाज संसद के अंदर और बाहर दबाने की कोशिश है और ये सीधे तौर पर तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, और कांग्रेस पार्टी इसे बिल्कुल भी नहीं मानेगी और कांग्रेस इसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट करती रहेगी। न सिर्फ कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, बल्कि आप एक बार सोशल मीडिया भी देखिए, उस पर भी ये ट्रेंड कर रहा है किस तरह से कांग्रेस के नेता इसको लेकर सरकार पर आक्रामक है और इस पूरी घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। जी बिल्कुल रंजीता, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें इस वक्त देने के लिए। और